मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बच्चे ठोकर खाएं और हम बंद कमरे में ना आपस में रोएं या बच्चे रोएं। देखिए आज है 22 दिसंबर, हम में से बहुत जन जानते होंगे कि आज है नेशनल मैथमेटिक्स डे। यस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो उसके ऊपर मैंने बच्चों को स्पीच दिया था दोनों को, तो वो कल स्कूल में बोल के आए। सैटरडे को उनका सेलिब्रेशन हो गया क्योंकि आज संडे है तो हॉलीडे है। तो मैं ये छोटा सा आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ कि जिसमें से है ना आप कुछ टिप्स ले सकें। क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ। नर्सरी से लेके ये 7th में आ गया है वंश और तपिश आ गया है 8th में। तो जब भी इन्होंने स्पीच बोला है या कोई आंसर्स है तो ये दोनों हमेशा फर्स्ट ही आए हैं। हर स्कूल में हर बच्चा हर क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन कितने परसेंट से आता है वो मैटर करता है। हमेशा इनके जो मार्क्स जाते हैं वो लैंग्वेज में जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, यानी 1-1 मार्क्स जो जाता है वही जाता है, वरना ये हमेशा आउट ऑफ ही लाते हैं। एक चीज़। तो सेकेंड चीज़ है, इन्होंने है ना ये नेशनल मैथमेटिक्स डे, मेरा फंबल हो रहा है, नेशनल मैथमेटिक्स डे में ना इन्होंने स्पीच बोला है दोनों ने। तो आप इन दोनों का स्पीच सुनिए और आपको कैसा लगता है वो बताइए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आगे क्या कहना चाह रही हूँ। Hi everyone, I am Tapish Prakash Agrawal from Standard 8th and today I would like to share an important fact with you. 22nd December is National Mathematics Day, celebrated in the honor of great mathematician Srinivas Ramanujan. Ramanujan was born on 22nd December 1887 in Madras, Tamil Nadu during British government. His full name was Srinivas Iyengar Ramanujan, the man who reshaped 20th century mathematics in various contributions in several mathematical domains including mathematical analysis, infinite series, continued fractions, number theories and game theories, is recognized as one of history's great mathematicians. He began developing his theories in mathematics and published his first paper in 1911. The number 1729 is known as Ramanujan number, which is the sum of the cubes, the two numbers 10 and 9. He died on 26 April 1920. At last, I would like to say his famous quote, "An equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God." Thank you. Hi everyone, I am Vansh Prakash Agarwal from Standard 7 and today I would like to share an important fact with you. 22nd December is celebrated as National Mathematics Day in honor of a great mathematician Srinivas Ramanujan. Ramanujan was born on 22nd December 1887 in Madras, Tamil Nadu during British government. His full name was Srinivas Iyengar Ramanujan, a man who reshaped 20th century mathematics with his various contributions in several mathematical domains including mathematical analysis, infinite series, continued fractions, number theory and game theory, is recognized as one of the history's greatest mathematicians. He began developing his theories in mathematics and published his first paper in 1911. The number 1729 is known as the Ramanujan number, which is the sum of the cubes of two numbers 10 and 9. Leaving this world at a very youthful age of 32, he died on 26th April 1920. And in the last, I would like to say a famous quote of Srinivas Ramanujan, "An equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God." Thank you. यस, गुड। तो अभी आपने देखा कि इन दोनों ने स्पीच दे दिया, तपिश ने भी दिया, वंश ने भी दिया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने देखा होगा दोनों का स्पीच सेम है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, फिर से बता रही हूँ कि ये 8th स्टैंडर्ड में है तपिश और वंश जो है 7th स्टैंडर्ड में है, यानी स्पीच एक ही है। अगर 7th का बच्चा उसे बोल सकता है तो वही स्पीच 8th का बच्चा भी बोल रहा है। इसे ही वाइस वर्सा कर लीजिए, 8th का स्पीच 7th का बच्चा बोल रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने भी इस चीज़ का ना फर्स्ट टाइम ट्रायल किया है। मैं भी जब स्पीच देती थी ना, तो मैं स्कूल की जो एज होती है क्लास के हिसाब से, मतलब इनको मैं स्पीच देती थी गूगल सर्च करके, बुक के रेफरेंस से, ऐसे लाइंस वगैरह के लिए इन लोगों को देती थी। इस बार मैंने क्या किया, एक स्पीच अगर दोनों को दे दिया और मैंने देखा दोनों ने याद कर लिया और दोनों ने आपके सामने स्पीच बोल दिया। प्रैक्टिस किया उन्होंने, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। और याद करने के लिए इन्होंने 15 मिनट में ये पूरा स्पीच याद किया। अब इसमें सिर्फ क्या होता है, ये गलती कहाँ करते हैं, पॉज कैसे करते हैं, वो मैं आपको क्लिपिंग है, अभी आप आगे देखिएगा, बिहाइंड द सीन जिसे हम बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती करती हूँ ना, या मेरा कुछ ऐसा रहता है मुझे बोलना, तो आप मेरे नेचर से भी समझ ही गए होंगे, तो मैं इतनी इमोशनल नहीं होती हूँ पढ़ाई के टाइम पे, या मेरा बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है, मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं होती हूँ। मैं अपने आप को जस्ट समझ के है ना, इन लोगों को एकदम
वो क्या बोलते हैं ट्रेन करती हूँ। अभी अगर आप पहले वाली क्लिपिंग आपने प्रकाश जी की देखी हो तो उनका फेस कैसा था और अब इनका फेस कैसा है, यानी कहने का मतलब क्या है, इनका दिल है ना दुख 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 कर रहा है कि तपिश ने सही बोला ना, वंश ने सही बोला। क्योंकि हमारे यहाँ कोई वैसा एडिटिंग का सिस्टम नहीं कि बहुत बार प्रैक्टिस लो फिर पैसा दिखाओ, नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। क्यों, कल आप लोग सामने मिले और आपने बोला, बच्चे बोले, तब नहीं बोल पाएंगे तो ये वीडियो मुझे फेक वीडियो में कभी नहीं बनाती हूँ। बच्चे स्कूल में भी बोल के आए हैं, बिहाइंड द सीन आप देखिए, और अभी इन्होंने जो कैमरा मैंने टर्न किया है वही वाली एडिटिंग है, मैंने इसने भी बोला और इसने भी बोला। तो मैं बच्चों आप लोगों को बोल रही हूँ कि जब आप स्कूल में जो लेंदी आंसर होते हैं ना, ब्रीफ आंसर जिसको बोलते हैं, या डिस्क्राइब बोलते हैं, या राइट इन ब्रीफ बोलते हैं, तो ये एक तरीके से वही चीज़ है, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। और मैं पेरेंट्स से ही बोलना चाहूँगी, और प्रकाश जी जैसे जो पेरेंट्स हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, मैं उनको भी बोलूँगी कि आप लोग इमोशनल मत होइए, क्योंकि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें बच्चे को है ना आगे बढ़ाना है। वो ठीक है, देखो ममता होती है, आती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग रहेंगे ना तो ही काम आगे होगा, वरना ऐसे काम नहीं होगा। एंड सेकेंड चीज़, तुम क्या बोलना चाहोगे? जो बच्चे तुम्हारी एज के हैं, ऐसे स्पीच में जैसे उनको डर रहता है ना कि अरे होगा नहीं होगा, तो क्या बोलोगे? नहीं, डरना नहीं चाहिए कभी भी, ऐसे क्राउड को देखकर या फिर कोई कैमरे को देखकर ऐसे डरना नहीं चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर आप अपने अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप प्रैक्टिस करके पूरा चले गए हो अच्छे से कि हाँ भाई आपको आता है, तो बस आपको फिर सामने आके कोई भी है तो आपको फिर घबराना नहीं चाहिए कि हाँ भाई मुझे आता है तो फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा रहना चाहिए आपके अंदर। यस, तो उसके लिए क्या है बच्चा लोग, आप लोगों को पहले है ना अच्छे से स्पीच याद करना होगा, और जो भी आपको सिखा रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। एंड सेकेंड चीज़, वंश आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, वैसे ही वही बोलना चाहूँगा कि क्राउड को देखकर कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हम किसी को सुना रहे हैं, मतलब सुनाने का ऐसे समझाने का कि हम किसी को समझा रही है, मुझे पापा ने समझाई बात। यस, पापा ने समझाई बात, और दोनों अच्छे से याद करते हैं। बस ये हमारा जो ये वंश है, आप क्लिपिंग में भी अभी देखिएगा, मैं लगा रही बिहाइंड द सीन की, कि इसको जब तक याद नहीं हो जाएगा ना, तो ये चाहे वॉशरूम में हो, चाहे किचन में हो, चाहे नींद में हो, ये बड़बड़ाता रहता है। उसको ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ है ना वो अच्छे से याद कर ले, तो इसकी एक वो नेचर है, मतलब उसकी अभी से नहीं, मतलब बचपन से, कि जब तक उसको याद नहीं हो जाएगा, एग्जाम में भी नहीं होगा ना, तो उसको है ना ममरिंग जिसको बोलते हैं ना, वो करता ही रहता है, करता ही रहता है, लेकिन रिजल्ट दोनों के अच्छे आते हैं। तो मैं पेरेंट्स से बोलूँगी कि आप लोग सोचते हो ना कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, आज तक बच्चे ने नहीं किया, हर बच्चा टैलेंटेड है। एक बार अपने बच्चे को ना मौका दीजिए, थोड़ा समय उसके साथ निकालिए, और जो क्लिपिंग्स में मैं बोल रही हूँ उस तरीके से एक बार आप ट्राई करके देखिए। नहीं नंबर आएगा फर्स्ट में, इतना ही तो होगा, लेकिन क्या है उसको स्पीच बोलने दीजिए। ये मत बोलिए कि देखो आपके बच्चे इतने फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, ये मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लोग मुझे बोल चुके हैं। देखो नर्सरी से सबकी शुरुआत होती है, ये लोग नर्सरी से ही करते आ रहे हैं। तब भी मुझे लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, अरे भाभी इतना पीछे नहीं पढ़ने का, अरे बाबा इतना नहीं देने का एज के हिसाब। उन लोगों को मैं अभी भी देख रही हूँ जो जहाँ थे ना, मतलब वो वही हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ, और मैं उस रेस में आगे बढ़ती गई ना। मैं पेरेंट्स आपको भी बोल रही हूँ, जिस रेस से भी आप बोलते ना दौड़ना शुरू कर रहे हो ना, करो, रुको बिल्कुल मत। अभी तक ये दोनों कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी मिलो। मैं स्कूल में भी यही बोलती हूँ, जो स्कूल की टीचर्स हैं सारे, जो लोग इनको शुरू से जानते हैं, तो वो तो स्पेशलिस्ट वीडियो से बोल देंगे कि इसकी मम्मी कुछ भी गलत नहीं बोल रही, ठीक है ना। एक जगह तो मैं नाम नहीं लूँगी अभी स्कूल का, एक जगह तो ऐसा था एनुअल डे में स्कूल में जो स्कूल का वो रहता है, मेन समरी रहती है स्कूल की, समरी की स्कूल कब स्टैब्लिश हुआ, इसके कितने ब्रांचेज हैं, इसने है ना मतलब 2.5 पेज का कैलेंडर, आप सोच सकते हो कितने छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा होता है, वो ये याद करके गया था, राइट। लेकिन उनका जो फंक्शन में था ना वो बहुत देर से हो गया था, तो इसका स्पीच नहीं हो पाया। तो वो जो स्कूल वाले ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो समझ गए कि तपिश की मम्मी झूठ नहीं बोल रही है। तो बच्चे हैं ना, हर बच्चा कर सकता है, ये कोई स्पेशल बच्चे नहीं है कि हाँ ये मतलब कुछ मैं इनको कुछ अलग खिलाती हूँ या करती हूँ, आप बाकी के व्लॉग्स भी देखते हो, ये हमारी तरह है। सिर्फ क्या है, पेरेंट्स के लिए एक टिप है कि आपको उनके लिए ना समय देना होगा। आप चाह रहे हो ना कि वही याद कर ले और हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कभी भी है ना, बच्चे हैं, आप समझ गए हो, वो कोई भी लाइन खा जाएंगे, आपको मालूम नहीं, आपको नहीं आता है तो आप कहीं पे पेज पे लिख दो, या बच्चों को बोलो बिना बुक के मेरे सामने मत आओ, और आप बराबर ध्यान रखो उसमें। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, बच्चे को बोलो उसको हिंदी में लिख के दे। आजकल है ना मोबाइल वगैरह पे सब पे सिस्टम है, आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ, मोबाइल आप सब लोग पेरेंट्स चलाते हैं, एक। एंड सेकेंड, बच्चा लोग आपको बोल रही हूँ, ऑब्जेक्टिव करके तो पास होते हो ना, अगर फर्स्ट नहीं आते हो ऑब्जेक्टिव करके पास होते हो ना, जैसे स्पीच हो रहा है जो इन्होंने स्पीच दिया उसी का है ना 2-2 लाइन करके भी करोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप 2-2 लाइन भी नहीं कर सकते और 7th 8th तक आए हो ना, तो समझ लेना बेटा फ्यूचर और 9th और 10th का
किसी काम का नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास 2 साल है, मेहनत करो और आगे बढ़ो। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, क्योंकि इस पर तो बिहाइंड द सीन ही आएगा, तो वापस हम आपको नहीं मिलेंगे अभी, अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा कि तपिश का अच्छा लगा, इसका अच्छा लगा, यही प्रकाश जी इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं होती इमोशनल। देखो सिंपल बात क्या है, मैं इनको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बच्चे ठोकर खाएं और हम बंद कमरे में ना आपस में रोएं या बच्चे रोएं, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ जितना स्ट्रांग रह सकते हैं उतना रहें, बच्चे लाइफ में आगे बढ़ें और उनके लिए भी प्राउड हो और हमारे लिए भी प्राउड हो। तो मैं स्पीच में इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। तो आप जाइए बिहाइंड द सीन देखिए, व्लॉग अच्छा लगे तो बताइए, और ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे किस तरीके के व्लॉग अच्छे लगते हैं। इस तरीके के अगर आपको कुछ एजुकेशनल टिप्स वगैरह चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छे से करते हैं, अगर हमारे व्लॉग के थ्रू आपके बच्चे कुछ अच्छे बन सकते हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसके ऊपर भी आपको जो मेरे को जितनी नॉलेज है अब तक 7th और 8th की, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो जाइए और वो क्लिपिंग्स देखिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। तो अभी आपने मम्मी का सुना होगा कि मम्मी ने क्या स्पीच दिया है। तो अभी पापा इमोशनल हो गए थे, तो नहीं पापा को मत दिखाओ। हाँ, नहीं तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो ऐसा मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो अभी मम्मी भी स्पीच में बोलते बोलते इमोशनल हो तो गई। मैंने तो बोला कि देखो मैं इमोशनल क्यों हो जाती हूँ, पता है कि पेरेंट्स समझ रहे होंगे कि बच्चों की जब हार होती है ना, तो माँ बाप की सबसे बड़ी वो हार होती है। बच्चों को तो इस बात पे टल जाएगी बात कि बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप है, उनको कोई ये नहीं बोलता कि अरे माँ बाप है। बच्चों के लिए ये बात होती है अरे वो तो बच्चों ने गलती कर दी। माँ बाप के लिए चीज़ नहीं होती है, इसलिए जितना स्ट्रांग हो सकते हैं उतना स्ट्रांग होइए, जंग है जीतनी है। 22nd December is celebrated as नेशनल मैथमेटिक्स डे इन द। अभी देखो, अभी आपने आंख बंद किया तो इसका मतलब क्या था, छोटी सी बारीकी है ना, इसका मतलब क्या था, देखो जैसे आपने देखा होगा ना कि ये बोल रहा था, ठीक है, इसने ऐसे आंख को ऐसे किया, ठीक है, कोई जो बहुत बारीकी से देखेगा वो उस गलती को पहचानेगा, लेकिन आंख बंद करने का मतलब क्या था, आप कहीं ना कहीं भूल गए। Questions by in several mathematical देख लिया। जब इसे मालूम including क्या बोला इसने मुझे mathematical जब कैमरा ऑन नहीं था कि पहले मुझे एक बार प्रैक्टिस ले लो वो कर लो, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं करती। बोलो। श्रीनिवास रामानुजन। अब तो कैमरा तुम्हारी तरफ ही रखें, पब्लिक के तुमको सुन बीच में तो होने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पब्लिक के तुम्हें सुनती रहेगी, ये तो मैं तुमको शुरू बचपन से क्या सिखाया है। मेरे लिए सुन रहे हो ना, उसके अरे लिए किसके लिए भी सुन रहे हो, तुमको अपने देखो अभी हमेशा देखो, मैं है ना, मैं आपको एक चीज़ आप एज ए पेरेंट्स लोगों को बोल रही हूँ, जैसे लोग मुझसे बहुत जन पूछते हैं कि ये लोग इतना अच्छा स्पीच कैसे देते हैं करते हैं, मैं है ना बहुत बार है ना इनके माइंड से खेलती हूँ, क्योंकि देखो जब स्कूल में टीचर स्टोरी लेती है आपसे तो टीचर आपको लगे मार्क्स देती है, तो टीचर मम्मी की तरह से पूरा ध्यान दे के नहीं सुनने वाली है। आप यहाँ कितनी मेहनत करो ये कोई नहीं देखेगा, आप पब्लिक क्या कर रही है उससे कोई मतलब। आप स्टेज पे आए, आपको अपना स्पीच कंटिन्यू बोलना है, कोई सुने या ना सुने, आपने अपनी ड्यूटी की ना, सामने वाला आपको जज करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तपिश प्रकाश अग्रवाल। थैंक यू। Good morning everyone, I am Vansh Prakash Agarwal. Thank you. व्यूअर्स को बताओ कि ये जो आप लोग बोलते हो कि रामानुजन नंबर जो है 1729 है, क्योंकि वो क्यूब्स है 2 नंबर्स का, 10 एंड 9 का, तो उसको एक्सप्लेन करो। The sum of the 10 cube and 9 cube is 1729. So this is how 10's cube is 1000, which is 10 into 10 is 100, and 100 into 10 is 1000. And the 9 cube is 729, which is how 9 into 9 is 81, and 81 into 9 is 729. And as we are going to add this both numbers, the 10 cube and the 9 cube, 1000 and 729, we will get the number 1729. Thank you. The cube is a thing where we have to multiply the number 3 times by itself. So if we have to find the 1000 or 10 cube, 10's number cube, so we have to multiply 10 into 10 into 10. So 10 into 10 100, and 100 into 10 is 1000. So 10's cube is 1000, and here we have to find 9's cube. So 9 into 9 18, and 18 into 9 into 9 81, and 81 into 9 729, and now we have to add this 1000 and 729, so we will get a number of 1729.